Hello students, my name is Atulya Kumar, Assistant Professor BDITM Lucknow. In this lecture series, we are studying about Introduction to Solid Mechanics. In today's lecture, we will discuss about how to calculate the bending moment and shear force and how to plot it. Okay, so let's start. So suppose we have an example that we have to calculate the shear force and bending moment of the given beam subjected to a concentrated point load of 15 kilonewton. Subjected point load of 15 kilonewton. The span of beam are 3 meter and 2 meter. We have to plot the bending moment and shear force diagram. So let us start. So first of all we have to calculate the reaction. First step was to calculate the reaction. So for the reaction we have to use this 3 equilibrium forces condition that we have. First equilibrium condition is very simple, that summation of fx equal to 0. So as we know this is a simply supported, one end is hinge, other is roller. So we have two reaction force Rax and Ray and one reaction force Rby. Okay. So summation of fx equal to 0, it means Rx equal to 0. Summation of Fy equal to 0, it means Ray plus Rby equal to 15. Ray plus Rby equal to 15. Okay. So now we have to calculate Ray or Rby, and then we have to find another set of reaction force. So first, to calculate one of the unknown force, that is Ray and Rby, we have to take the moment about A equal to 0. The moment about A equal to 0, then minus Rby, because at this point it will be coming as anti-clockwise. So minus Rby into 5 plus 15 into 3 is clockwise, hence Rby equal to 9 kilonewton and hence Ray equal to 6 kilonewton. So this is very simple to calculate the reaction forces. Now the next step was to calculate the shear force. So let's start. So shear force calculation. For shear force calculation, we know that at any point where there is the application of point load, for in the case of shear force calculation, we take two conditions, that one is either to the left of that point load and right of the point load. So reaction force is also a type of point load. Okay. So SF calculation, shear force calculation. So shear force at point A. At point A, it means at point A there is a reaction force. Reaction force is the point load. Okay. So at the point of application of point load, we have to take two conditions, left and right condition. So I am writing left condition, left का type and right. Okay. So left will be पॉइंट लोड के लेफ्ट में हम लोग अगर देखेंगे तो कोई फोर्स नहीं आ रहा है, पॉइंट लोड के लेफ्ट में कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो लेफ्ट इक्वल टू 0 किलोन्यूटन. पॉइंट लोड के राइट में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे 6 किलोन्यूटन का नेट वर्टिकल फोर्स आ रहा होगा. यहाँ तो 0 है, लेकिन इस साइड अगर आएंगे, जैसे ही हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो इस पॉइंट पे वर्टिकल फोर्स एक आ रहा होगा 0 + 6 यानी कि 6 किलोमीटर. ये अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो अपवर्ड लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो अपवर्ड क्या हो रहा है, अपवर्ड विल बी कंसिडर एज टेकन एज पॉजिटिव. ओके. तो 6 किलोमीटर. परफेक्ट. नेक्स्ट हम लोग कहाँ चलेंगे, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इस पॉइंट पे, इसका नाम देते हैं सी. एट पॉइंट सी चलेंगे और कहीं पे हमें कोई बीच में कोई पॉइंट कंसीडर नहीं करना किया है. अगर करेंगे तो वहाँ पे भी कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन क्यों नहीं किया, क्योंकि बीच में और कोई फोर्स आ नहीं रहा है. तो नेक्स्ट फोर्स जहाँ लग रहा है वो 15 किलोमीटर का लग रहा है एट द पॉइंट सी. तो एट पॉइंट सी चलते हैं, हम लोग. अगर हम एट पॉइंट सी चले हम लोग, तो पॉइंट सी पे भी हम लोग के पास में दो केस आता है, एक आता है लेफ्ट और दूसरा आता है राइट. लेफ्ट एंड राइट का मतलब है कि बहुत दूर नहीं, पूरी दूर नहीं, जस्ट इस पॉइंट पे ले लेंगे, इस पॉइंट पे, और एक राइट मतलब ये पॉइंट पे, जस्ट हल्का सा टच करने से पहले वाला पॉइंट ले लेंगे. तो लेफ्ट से एट पॉइंट सी के अगर लेफ्ट में चले, अगर हम इस पॉइंट पे चले, तो यहाँ पे नेट वर्टिकल फोर्स कितना आ रहा है, तो नेट वर्टिकल फोर्स देख रहे हैं कि इस पॉइंट से पहले कोई वर्टिकल फोर्स नहीं है. इस पॉइंट से पहले ये जो पॉइंट है सी डैश ले लेते हैं और ये सी डबल डैश, तो ये सी डैश से पहले कोई पॉइंट नहीं आ रहा, सी डैश से पहले कोई पॉइंट नहीं है. इसका मतलब नेट वर्टिकल फोर्स क्या होगा वहाँ पे, जितना रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा और अपवर्ड फोर्स है रिएक्शन, तो 6 किलोमीटर. डन. नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि राइट चलेंगे. जैसे ही हम इस बीम के राइट पे चले, यानी कि सी डबल डैश पे पहुंचेंगे, जैसे ही इस पॉइंट के राइट में हम जाएंगे और सी डबल डैश पे हम लोग पहुंचेंगे, तो वहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि एक वर्टिकल फोर्स और एक्ट हो रहा होगा जो कि 15 किलोमीटर का है. यानी कि यहाँ पे अगर हम शेयर फोर्स निकालें तो शेयर फोर्स हो जाएगा 6 - 15. 6 - 15 क्यों, क्योंकि 6 इज अपवर्ड फोर्स, तो +6. हमें नेट वर्टिकल फोर्स लेना हुआ तो एक और वर्टिकल फोर्स आ गया जो कि 15 है, और माइनस किस लिए, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो 6 - 15 यानी कि यहाँ पे एक फोर्स आ रहा होगा जो कि होगा -9 किलोन्यूटन का. डन. उसके बाद हम जब यहाँ से मूव करेंगे तो बी पॉइंट पे चलेंगे. बी पे भी हम लोग दो पॉइंट लेंगे,
क्योंकि यहाँ पॉइंट लोड है तो यहाँ पे भी हम लोग दो पार्ट लेंगे, एक ये लेंगे बी डैश, एक ये लेंगे हम लोग बी डैश और दूसरा लेंगे बी डबल डैश, ठीक है। तो एट पॉइंट बी अगर हम लोग चलें, एट पॉइंट बी अगर हम लोग चलें, एट पॉइंट बी अगर हम लोग चलते हैं तो पॉइंट बी पे भी हम लोग दो पार्ट कैलकुलेट करेंगे, एक तो लेफ्ट की पार्ट कैलकुलेट करेंगे और दूसरा हम लोग राइट कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लेफ्ट पार्ट कैलकुलेट करते हैं, अगर हम बीम के लेफ्ट की बात करें यानी कि बी डैश की बात करें, तो बी डैश पे नेट वर्टिकल फोर्स कितना आ रहा होगा, तो 6 माइनस 15, और तो कोई फोर्स आ नहीं रहा रास्ते में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 माइनस 15 इक्वल टू -9। और अगर राइट की बात करें, राइट की बात करें तो राइट में कौन कौन सा फोर्स आएगा, 6 किलो न्यूटन का वर्टिकल फोर्स माइनस 15 किलो न्यूटन का निगेट डाउनवर्ड फोर्स, और फिर से कौन सा फोर्स आ रहा होगा 9 किलो न्यूटन का वर्टिकल फोर्स, यानी कि ये 0। यानी कि हमारे पास में अगर शेयर फोर्स का कोऑर्डिनेट देखें, अगर हम कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो ए पॉइंट के पास हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है 0 एंड 6 का, सी पॉइंट के पास हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है 6 एंड -9 का, और बी पॉइंट पे हमारे पास दो कोऑर्डिनेट है -9 का और 0 का। तो हम इसको प्लॉट करके देखते हैं। प्लॉट करने के लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे, और ये स्ट्रेट लाइन जो मेजर करेंगे वो हम जहाँ से जहाँ तक बीम रहेगा हमारा उतना दूर, ये हमारा स्ट्रेट लाइन रहेगा बीम के ठीक सामने में, ठीक है। बीम के ठीक सामने हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ओके। उसके बाद जब हम स्ट्रेट लाइन हम लोग प्लॉट कर लिए, जब हम लोग स्ट्रेट लाइन प्लॉट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये पॉइंट पे हमारे पास दो है, एक तो 0 है और दूसरा 6 है। तो ये हमारे पास सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है, तो ए पे 0, तो 0 तो यहाँ हुआ, और दूसरा 6, वो 6 यहाँ रहा, 6 ये रहा। नेक्स्ट जब हम आगे मूव करते हैं, एक आगे मूव करते हैं, तो सी पॉइंट से पहले, सी पॉइंट में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ रहे थे 6 एंड -9, तो 6 तो यहीं प्लॉट होगा, ये 6 प्लॉट हुआ, और दूसरा -9 यहाँ प्लॉट होगा, क्योंकि माइनस है तो डाउनवर्ड साइड में जाएगा, हम अपवर्ड पॉजिटिव ले रहे हैं, डाउनवर्ड नेगेटिव, तो -9। फिर आगे मूव करते हुए हम लोग चले, बी पॉइंट के लेफ्ट में पहुंचे, तो बी पॉइंट के लेफ्ट में पहुंचे तो -9 था, और बी पॉइंट के राइट में 0 था, तो ये -9 यहाँ प्लॉट हुआ और 0 यहाँ। उसका हम क्या करेंगे, बस स्ट्रेट लाइन से इसको क्या करेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट करके रख देंगे। ये हो गया हमारा शेयर फोर्स डायग्राम। उसके बाद हम लोग बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस एक बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बनानी है, और बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन से भी अच्छा रहेगा कि अगर हम जैसे बहुत सिंपल कंडीशन है तो बहुत ही आराम से हम बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन बना सकते हैं, बहुत ही आराम से हम लोग बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन कंसीडर करेंगे। कैसे देखते हैं, अगर हम एट पॉइंट ए की पहले बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन निकाल लें, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, तो एट पॉइंट ए अगर हम कैलकुलेट करें, एट पॉइंट ए बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन के लिए क्या था कि इस पॉइंट पे जितने नेट बेंडिंग मोमेंट आ रहे होंगे, कैलकुलेट हो रहे होंगे, वो लेना है, इसके लेफ्ट में या इसके राइट में, इसके लेफ्ट में या इसके राइट में। तो इसके लेफ्ट और इसके राइट में कोई बेंडिंग मोमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हिंज सपोर्ट जो है वो एक भी मोमेंट रेसिस्ट नहीं करता, इसलिए बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, एट ए पॉइंट ए इक्वल टू 0 हो जाएगा, परफेक्ट पॉइंट ए। और अगर आप देख भी सकते हैं, तो यहाँ पे अगर इसके हम राइट साइड की बात करें, अगर हम राइट साइड की बात कर लें, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेट मोमेंट 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है, देखिएगा कि अगर हम राइट साइड की बात करें तो 15 × 3 का एक ये मोमेंट आ रहा होगा, और 9 × 5 का ये मोमेंट आ रहा होगा। इसका मतलब नेट मोमेंट इंटेंसिटी कितनी है, 45 - 45 0, इसलिए डायरेक्ट पॉइंट ए पे हमने बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या रख दी, 0 रख दी। सिमिलरली अगर हम पॉइंट सी पे चलें, एट पॉइंट सी पे चले, सेंटर पॉइंट पे चले, तो वहाँ पे जहाँ पे लोड हो रहा है ये है पॉइंट सी। अगर हम यहाँ पे पॉइंट सी पे चलें, तो यहाँ पे अगर हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालें, तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस 6 × 3 कर देंगे, 6 × 3, क्योंकि और कोई पॉइंट लोड वहाँ एक्ट नहीं हो रहा है। याद रखना है कि जब हम लोग शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे तभी पॉइंट लोड के केस में हमें राइट एंड लेफ्ट करना है, यूडीएल के केस में राइट एंड लेफ्ट शेयर फोर्स में भी नहीं करना है, बस पॉइंट लोड के केस में, क्योंकि वहाँ पे जब पॉइंट लोड लगा रहता है ना, तो वहाँ पे सडन इंक्रीज इन शेयर फोर्स हो जाता है, इसीलिए हम लोग पॉइंट लोड के केस में हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो एट पॉइंट सी अगर हम कैलकुलेट करें, तो पॉइंट सी में, और ये मोमेंट की इंटेंसिटी कितनी है, क्लॉकवाइज है, तो 6 × 3 करेंगे, तो ये 18 किलो न्यूटन की मीटर की हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट बी पे, पॉइंट बी में इससे पहले वाले लगने वाले लेफ्ट साइड से कितने लोड आ रहे हैं, तो पॉइंट बी के लेफ्ट साइड में हमारे पास लोड है 6 और 15, 6 एंड 15, तो 6 और 15 के कारण कैलकुलेट करते हैं हम लोग, 6 एंड 15 के कारण कैलकुलेट करते हैं
तो 6 इंटू दिस फोर्स, दिस वैल्यू क्लॉकवाइज वैल्यू है, तो 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5, ओके, 6 इंटू 5, ये पॉजिटिव। माइनस 15 इंटू 2 क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को अगर हम यहाँ पे मतलब फिक्स कर लें, अगर इस पॉइंट को हम लोग होल्ड कर लें और इस सपोर्ट इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसको अपवर्ड करें, तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट हो रहा है, तो इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज बात कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा -15 इंटू 2 करेंगे, तो 6 5 30 या -30 इक्वल टू 0, -30, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर समझने वाली बात है कि हम लोग जब भी बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हम उस पॉइंट के लेफ्ट वाले लोड के कारण जो भी बेंडिंग मोमेंट आ रहा है हम उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर इसी केस में अगर बहुत ही आप लोगों को ये भी होगा कि सर ऐसा तो नहीं है कि हम राइट साइड वाले पार्ट को नहीं लेते, तो हम राइट साइड वाले पार्ट को, अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे ए पॉइंट पे हम लोग बेंडिंग मोमेंट ले रहे थे, तो ए पॉइंट पे अगर बेंडिंग मोमेंट लेंगे, ए पॉइंट से पहले जो भी लोड होंगे उसके कारण उस पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। ए पॉइंट से पहले जो भी पॉइंट है या जो भी लोड आ रहा है उस लोड के कारण हम इस पर बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम सी पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो सी पॉइंट से पहले जो लोड आ रहा था उसके कारण उस पर बेंडिंग मोमेंट निकालें। सी पॉइंट से पहले कौन सा लोड आ रहा था, 6 किलोमीटर, उसके कारण उस पर बेंडिंग मोमेंट। बी पॉइंट पे निकालें तो बी पॉइंट से पहले यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी लोड आ रहा था हम उसकी बात कर रहे थे। अगर हम राइट साइड से निकालना चाहें, अगर हम सपोज करते हैं कि हम राइट साइड से निकालना चाहते हैं, तो क्या ये चीज़ कंडीशन सेम होती है या नहीं होती है, हम इसकी बात करेंगे। तो सपोज करते हैं कि ए के राइट साइड में कितनी वैल्यू आ रही है, तो ए के राइट साइड में देखेंगे, तो ए के राइट साइड की बात करें, अगर हम लोग राइट साइड में कैलकुलेट करें तो सेम वैल्यू आएगी, 0 आएगी। क्यों? क्योंकि ये 15 इंटू 3 क्लॉकवाइज है निगेटिव और -9 इंटू 5 एंटी क्लॉकवाइज है पॉजिटिव। 15 इंटू 3 -9 इंटू 5, ये वैल्यू 0। एट पॉइंट बी की बात करें, एट पॉइंट सी की बात करें, हम लोग अगर पॉइंट सी की बात कर रहे हैं, तो सी के राइट साइड में कौन कौन सी वैल्यू है, सी के राइट साइड में कौन कौन सा फोर्स आ रहा है, एक ही फोर्स आ रहा है। सी के राइट साइड में एक ही फोर्स आ रहा है, तो सी के राइट साइड में एक ही फोर्स आ रहा है और ये कौन सा मोमेंट रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज राइट टू लेफ्ट करने में हमने बताया था कि प्लस लेना होता है, तो 9 इंटू 2 करेंगे, 18 किलो न्यूटन का आ गया, 18 किलो न्यूटन मीटर का। और बी पॉइंट के राइट में क्या है, कोई फोर्स नहीं है, बी के लेफ्ट राइट में क्या है, कोई फोर्स नहीं है, तो बी पे फिर से वैल्यू 0। तो कैलकुलेशन सेम है, चाहे आप राइट से आ रहे हैं या लेफ्ट से आ रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। कॉन्सेप्ट हमेशा लगाना है कि अगर आप राइट से स्टार्ट किए तो आप उस पूरे बीम में राइट से ही मूव करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ तक हम राइट से मूव करें फिर वहाँ से हम लेफ्ट से बात करें, तब कन्फ्यूजन हो जाती है और आंसर कैलकुलेट गलत होता है। ठीक है, अगर आप राइट से मूव कर रहे हैं तो आप सिर्फ राइट से मूव करेंगे और लेफ्ट से मूव कर रहे हैं तो बस लेफ्ट से मूव करेंगे। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखेंगे, अब इसी वैल्यू को प्लॉट करना है, तो प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट ले लेंगे। हम लोग ने एक्स डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट ले लिया। ए पॉइंट पे हमारे पास कितनी वैल्यू थी, हमने ए पॉइंट पे वैल्यू रखी 0। बी पॉइंट पे हमारे पास वैल्यू कितनी थी, 18 किलो न्यूटन। हमने बी पॉइंट पे भी 0 और सी पॉइंट पे 18 किलो न्यूटन। और हमें पता है कि पॉइंट लोड के केस में जो स्लोप बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, जो ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है। तो हम लोग ने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया और स्ट्रेट लाइन से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल था बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने का। नेक्स्ट जो केस है, नेक्स्ट जो हम लोगों के पास में जो केस है वो केस है कि बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स डायग्राम कैलकुलेट करना, एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसपे एक यूडीएल एक्ट हो रहा है, जिसपे हम लोग यूडीएल एक्ट करा रहे हैं, उस पर हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना था। हमारे पास में एक सिंपल सेट है। यहाँ पे हम लोग के पास में सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसपे 5 किलो न्यूटन पर मीटर का एक यूडीएल एक्ट हो रहा है और स्पैन लेंथ इस बीम की है 3 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को रिएक्शन निकालना होगा। तो रिएक्शन ये हो जाएगा RAY, ये हो जाएगा RBY, ये हो जाएगा हमारे पास में RAY, RBY, और ये हो जाएगा हमारे पास में क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे RAX। बहुत ही सिंपल। समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 करेंगे। सबसे पहले समेशन ऑफ fx इक्वल टू 0 करेंगे तो RAX इक्वल टू 0 हो जाएगा। समेशन ऑफ fy इक्वल टू 0 करेंगे तो RAY प्लस RBY प्लस RBY इक्वल टू 5 इंटू 3 है। और उसके बाद अगर हम मोमेंट एट RAY और RBY दोनों क्या अननोन है, तो दोनों में से किसी एक के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। मोमेंट कैलकुलेट करके फिर वहाँ से हम उस अननोन की वैल्यू निकालेंगे। तो मोमेंट एट ए निकाल रहे हैं तो मोमेंट एट ए इक्वल टू करेंगे तो माइनस RBY इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3/3। अब ये बहुत सारे कन्फ्यूजन की सर ये क्या कहाँ से आया, तो देखिए बहुत ही सिंपल चीज़ है कि 5 इंटू 3 15 किलोमीटर। हम क्या कर रहे हैं कि यूडीएल को हम लोग एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। 5 इंटू 3 का मतलब है उस पूरे यूडीएल को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये जो पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है
वो उस यूडीएल के सीजी पे एक्ट हो रहा है, उस यूडीएल की सीजी पे एक्ट हो रहा है। कैसे हो रहा है? तो 5/3 का तो एक इंटेंसिटी का हमने क्या किया, पॉइंट लोड बनाया। मतलब इस पूरे लोडिंग डायग्राम को हम लोग कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, कुछ इस तरीके में। इस पूरे लोडिंग डायग्राम को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं कुछ इस केस में, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ये तरीके से 5/3 का एक पॉइंट लोड क्रिएट किया, 5/3 का, ये 15। और ये जो पॉइंट एक्ट हो रहा होगा, ये ए पॉइंट और ये पी पॉइंट है, ये इस यूडीएल के सीजी पे एक्ट हो रहा होगा। और ये डिस्टेंस कितना है, 1.5 मीटर। ठीक है, तो अगर हम इस पॉइंट की मोमेंट, अगर इसकी मोमेंट की वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहे तो 15 × 1.5 करेंगे, 15 × 1.5 करेंगे। तो हम लोगों ने वही किया, 15 × 1.5 किया, 15 × 1.5 किया। तो यहाँ से हम लोग के पास में RBY की वैल्यू आई 7.5, सिमिलरली RAY की वैल्यू निकली 7.5। बहुत ही सिंपल केस था। अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग अब बात करेंगे इसमें कि शेयर फोर्स कैसे कैलकुलेट की जाए। तो शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यूडीएल के केस में, जब भी यूडीएल का केस आए तो आप, बहुत ही सिंपल केस है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है। आप यहाँ पे 3 पॉइंट पे शेयर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस केस में 3 पॉइंट में शेयर फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। या सिमिलर सी बात है, आप इसमें कुछ नहीं, आप हम लोग सिर्फ इस पर एक इक्वेशन बना लेंगे और वहाँ से वैल्यू निकालेंगे। सपोज करते हैं कि ये हमारा एक्स सेक्शन है, ये हमारा एक्स सेक्शन है। अब इस सेक्शन पे शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे SF एट एक्स सेक्शन, SF एट एक्स सेक्शन। अपवर्ड फोर्स की वैल्यू कितनी थी? ये 7.5 आ रहा है, ये 7.5 आ रहा है। तो इस केस में SF 7.5, तो ये पॉइंट लोड है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस हम लोग मान रहे हैं कि ये x डिस्टेंस है, हम लोग कैलकुलेट एज्यूम कर रहे हैं कि x डिस्टेंस है। तो यहाँ तक अगर x डिस्टेंस है तो वर्टिकल फोर्स, इस फोर्स के कारण कितनी फोर्स आ रही होगी? तो -5 × x। ये हमारे पास शेयर फोर्स का एक इक्वेशन बना एट एक्स सेक्शन। अगर हम शेयर फोर्स अगर निकालें एट पॉइंट ए, अगर हम शेयर फोर्स निकालें एट पॉइंट ए, तो एट पॉइंट ए निकालें अगर शेयर फोर्स, अगर एट पॉइंट ए शेयर फोर्स निकालें तो पॉइंट ए पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 के बराबर में है। पॉइंट ए पे एक्स की वैल्यू कितनी है? 0 के बराबर में है। तो एस एफ की वैल्यू हम क्या करेंगे? एस एफ इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? एस एफ इक्वल टू लिखेंगे 7.5 - 5 × 0, और ये 7.5 किलो न्यूटन। एट पॉइंट बी लिखें, अगर हम लोग एट पॉइंट बी लिखते हैं, तो पॉइंट बी पे हमारा क्या है? रिएक्शन फोर्स हो रहा है। रिएक्शन फोर्स में हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग यहाँ पे भी 2 पार्ट करते हैं, क्योंकि पॉइंट लोड होता है तो लेफ्ट एंड राइट पे, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट पे। तो एट पॉइंट बी पे अगर हम बात करें तो पॉइंट बी के लेफ्ट की बात करते हैं, तो लेफ्ट में तो यही इक्वेशन काम आएगा। कहाँ पे? तो 7.5 - 5 × 3, ये कितनी वैल्यू हो जाएगी? -7.5 हो जाएगी। और अगर हम राइट की बात करें, अगर हम इस केस में राइट की बात करें तो ये आ जाएगा 7.5 - 5 × 3 + 7.5, रिएक्शन फोर्स भी था, आ जाएगा 0 के बराबर में। ये पॉइंट आ गए। अब बात करेंगे कि सर ये 7.5 से लेके सब 0 तक आ रही है, 7.5 से 0 तक आ रही है, ठीक है। तो सर हम कैसे, अब कहीं ना कहीं तो इसने वैल्यू चेंज किया होगा, कहीं ना कहीं तो वैल्यू चेंज हुआ होगा। कहाँ से वैल्यू चेंज किया होगा? तो बस कुछ नहीं है, इस इक्वेशन की वैल्यू, इस इक्वेशन को हम लोग 0 के बराबर रख देंगे, यानी कि 7.5 - 5x इक्वल टू अगर हम 0 कर दें, इसका मतलब यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू निकल जाएगी। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7.5/5 करेंगे और 1.5 एट x इक्वल टू 1.5 मीटर, एट x इक्वल टू 1.5 मीटर, एट x इक्वल टू 1.5 मीटर शेयर फोर्स की वैल्यू क्या होगी? 0 हो रही होगी। x इक्वल टू 1.5 मीटर शेयर फोर्स की वैल्यू 0 हो रही होगी। एक तो ये भी तरीका है कि आप निकाल सकते हैं कि वहाँ पे, दूसरा तरीका क्या है कि जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 आ रही होगी, जिस भी पॉइंट पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 आ रही होगी, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 आ रही है, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। दोनों केस है। पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन में जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 आ रही है, वहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम आएगी। जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 है, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगी। बेंडिंग मोमेंट जहाँ पे 0 होता है, वहाँ पे पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन होता है। शेयर फोर्स जहाँ पे 0 होता है, वहाँ पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या है? ये पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन है, पॉइंट ऑफ काउंटरफ्लेक्शन नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू जहाँ 0 हो रही है वहाँ पे। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने का, x इक्वल टू 1.5 मीटर कैलकुलेट करने का और तरीका है कि जो बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन हम लोग बनाएंगे, अगर हम उसको, उसके स्लोप की वैल्यू को 0 के बराबर में कर देंगे, तो हम वहाँ से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्लोप की वैल्यू होती है dm/dx, वो शेयर फोर्स के इक्वेशन के बराबर में होती है। आप देख सकते हैं,
आप देखेंगे अभी जस्ट हम लोग के सामने में, हम लोग अभी जस्ट देखेंगे इस चीज़ को, हम लोग जस्ट देखेंगे इस चीज़ को कि अगर हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकालना चाहे, अगर हम बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकालना चाहे एक्स एक्स सेक्शन पे, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स निकालना चाहे, एम एट एक्स 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 निकालना चाहे तो बहुत ही सिंपल से निकलेगा। क्या निकलेगा? 7.5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स, और ये पूरा एक्स सेक्शन है, ये पूरा एक्स सेक्शन है, तो इसकी लोड की सी जी कितनी होगी? x/2 पे आ रही होगी, x/2 पे, तो इंटू x/2, x/2, तो 7.5 माइनस 5x² 7.5 माइनस 5x² ये क्या है? ये बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन आ रहा है, 7.5x माइनस 5x²। अब इसमें अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पूरा का पूरा ए पॉइंट पे 0 हो जाएगा, और अगर x इक्वल टू 3 पुट करेंगे, x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो बी पॉइंट पे वैल्यू 0 हो जाएगी। तो और अगर मैक्सिमम निकालना है तो मैक्सिमम कहाँ पे आएगा? जहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। शेयर फोर्स की वैल्यू कहाँ होगी? जहाँ पे dm/dx की वैल्यू 0 होगी। और अगर हम इसी को dm/dx करें, इसी इक्वेशन को dm/dx करते हैं, तो अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यह आ जाता है 7.5 माइनस 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 क्या हो जाएगा? 5 2x माइनस 5 2x, 2 कैंसिल, यानी कि हो जाएगा माइनस 5x। आप देख सकते हैं कि dm/dx इक्वल टू 7.5 माइनस 5x, और शेयर फोर्स एट x की वैल्यू हम लोग निकाला था 7.5 माइनस 5 इंटू एक्स। ठीक है, इसका मतलब कि दोनों सेम चीज आ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज टेकन एज शेयर फोर्स, और शेयर फोर्स इक्वेशन की वैल्यू अगर हम 0 के बराबर पुट करते तो उस पॉइंट पे भी हमारा बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कहाँ आएगी? मैक्सिमम आएगी, वो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एक यूडीएल के केस में कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यूवीएल। यूवीएल के केस में बात करेंगे। यूवीएल मतलब होता है कि यूनिफॉर्मली, अभी तक यूडीएल मतलब क्या था कि लोड की जो इंटेंसिटी थी ना वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी पूरे बीम पे, लेकिन यूवीएल का मतलब होता है कि लोड की इंटेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ना होकर वेरियली डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लोड की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाएगी। उस टाइप के लोड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड। एग्जाम्पल में वाटर का प्रेशर जब एक डैम के फेस पे लगता है या डैम के वॉल पे लगता है तो उस वाटर प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? ट्रायंगुलर फॉर्म में होती है, और उसको यूवीएल बोलते हैं। तो हमारे पास एक इस तरीके का बीम है, इस तरीके की बीम की एनालिसिस भी सेम होती है, इस तरीके की बीम की एनालिसिस सेम होती है जैसे हम लोग यूडीएल के केस में एनालिसिस किए थे। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे। रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही सिंपल चीज़ है कि हमें सबसे पहले इक्विलिब्रियम इक्वेशन का यूज़ करना होगा। इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए हमें अगर हॉरिजॉन्टल इक्वेशन दिया हो, हॉरिजॉन्टल इक्वेशन हम लोग के पास में, तो आर एक्स हम यहाँ से 0 के बराबर पुट कर देंगे। दूसरा हम क्या करेंगे? आर एक्स आर ए वाई प्लस आर बी वाई इक्वल टू नेट लोड। लोड मतलब क्या हुआ कि इस पूरे एरिया, इस पूरे लोडिंग डायग्राम का जो एरिया होगा, इस पूरे लोडिंग डायग्राम, यानी कि अगर इस पूरे लोडिंग डायग्राम का एरिया कितना हो जाएगा तो 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, ये पूरे लोडिंग डायग्राम का एरिया हो जाएगा। अब हम मोमेंट निकालते हैं, तो मोमेंट अगर हम ए पॉइंट पे निकालें, मोमेंट अगर हम ए पॉइंट पे निकालें तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि आर बी इंटू 3 करेंगे हम लोग, आर बी इंटू 3 करेंगे। उसके बाद लोड की वैल्यू निकालेंगे, तो लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? लोड इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो लोड इक्वल टू हम लोग इस पॉइंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। दूसरा, अब इसकी सीजी कहाँ से होगी? ये पॉइंट की, ये पॉइंट, ये क्या होता है? ये 2/3 इंटू 2 होगा, 2/3 इंटू 2 होगा। और इधर से अगर अपेक्स से बात करें, अपेक्स से बेस से बात करें तो ये होता है h/3, और इसको लिख सकते हैं 3/3। ठीक है, 2/3 इंटू 3 होगा, 2/3 इंटू 3 हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग आरबीआई की वैल्यू निकाल, आरबीवाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आरबीआई की वैल्यू 2i, आरएवाई की वैल्यू 1i, आरबीवाई की वैल्यू 2, आरएवाई की वैल्यू 1। अब हम क्या करेंगे? सेम शेयर फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। शेयर फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें शेयर फोर्स का इक्वेशन निकालना होगा, हमें शेयर फोर्स की इक्वेशन कैलकुलेट करनी होगी। शेयर फोर्स की इक्वेशन कैलकुलेट करनी होगी। शेयर फोर्स की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक एक्स एक्स सेक्शन कैलकुलेट करेंगे। 8 एक्स एक्स सेक्शन हम लोग लेंगे, और इस एक्स एक्स सेक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे? शेयर फोर्स इक्वेशन बनाएंगे। तो एस एफ एक्स एक्स निकालें तो इसकी वैल्यू कैसे हो जाएगी? तो ये हो जाएगी, इसकी वैल्यू अगर हो जाएगी तो ये लिखेंगे आर ए वाई माइनस इस ट्रायंगल तक का जो एरिया रहेगा, ये ट्रायंगल का जो एरिया रहेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा -1/2 W इंटू एक्स इंटू एक्स। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि सर ये WX की वैल्यू कैसे निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है, सिमिलर ट्रायंगल ले लेंगे। सिमिलर ट्रायंगल तो क्या करेंगे? 2/3 इक्वल टू WX
बाई एक्स। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स, हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स। बहुत ही सिंपल है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमें ये इंटेंसिटी नहीं पता, हमें ये इंटेंसिटी की वैल्यू नहीं पता है, इस इंटेंसिटी की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हमें तो इस इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इस इंटेंसिटी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये इंटेंसिटी। तो ये इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ किया और हमें निकला 2/3, यानी कि शेयर फोर्स की वैल्यू अगर हम निकालें तो एस एफ एट एक्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा RAY माइनस 1/2 इंटू एक्स इंटू 2x/3, 2x/3, यानी कि 2x/3 को अगर करें तो ये RAY माइनस x²/3, RAY माइनस x²/3 हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू आएगी। अब शेयर फोर्स हमें निकालना कहाँ कहाँ है, हम लोगों के पास में 2 इक्वेशन है, 3 पॉइंट होती है, एक बी सी और डी, बी सी और ए पे। अब बी सी ए का मतलब क्या है, बी सी और ए का मतलब क्या है कि ए पॉइंट पे, ए पॉइंट क्या है, एक रिएक्शन फोर्स है। रिएक्शन फोर्स के राइट एंड लेफ्ट की बात करेंगे तो इसके लेफ्ट में क्या होगा, कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है तो जीरो, ए पे कोई भी फोर्स नहीं आ रहा है तो जीरो। वाई पे चलेंगे, जैसे ही इसके राइट में जाएंगे तो राइट में हम ये इक्वेशन लेंगे और इस इक्वेशन में एक्स की वैल्यू को जीरो पुट कर देंगे, तो वहाँ पे हमें शेयर फोर्स की वैल्यू पता चल जाएगी। उसी जैसे जैसे हम आगे फॉरवर्ड करेंगे हम एक्स की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और जैसा जैसे यूडीएल में किया तो सेम चीज़ हम लोग कैलकुलेट करेंगे और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हर एक पॉइंट का इंटेंसिटी निकाल के। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकालना भी बहुत सिंपल है। बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इस इक्वेशन पे बेंडिंग मोमेंट, तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट अगर निकालना चाहे तो एम एक्स एक्स से अगर निकालना चाहे तो ये तो पहला हो जाएगा RA इंटू एक्स, दूसरा क्या हो जाएगा -1/2, इंटेंसिटी कितनी थी इसकी डब्ल्यू एक्स की, तो ये हो जाएगा 2x/3 इंटू एक्स। ये तो लोड हो गया, ये एक्ट कहाँ से करेगा, तो ये इसके CG से एक्ट करेगा, ये इसके CG से एक्ट करेगा और CG की वैल्यू कितनी हो जाती है, CG की वैल्यू हो जाएगी 2x/3, CG की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x/3, तो इंटू 2x/3 हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करके हम लोग बेंडिंग मोमेंट इस केस के लिए भी निकाल सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट इस केस के लिए भी निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।